Today we'll see this deadlock topic, and that is the last topic of this unit. Okay, so deadlock actually occurs in operating system when one process access or the resource is already available with that particular process and waiting for another resource which is already accepted or available with another process. So the cycle may creates, and due to that cycle no result, no progress of the process happens. So that means there are different instances of occurrences that should be in an operating system, but no result, no progress happens, so that is called as deadlock. So let us see this uh, deadlock. So this is a definition for deadlock. So what is this deadlock? Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another uh, acquired by some other process. We indicate the process with a circle and resources with square or rectangle. Okay, so these resources and this is process. So this process, and there is a indication of this arrow which is towards this process, means the resource is available with the process. So there is another process, for example, another process that requesting. Now this is called as request because the arrow towards the resource, that is the request, and it is actually uh, accepted the resource by this process. So it holds a resource. So here is, we can say, holding the resource and waiting for suppose there is another resource R2, this one. It holds that this particular process P1, for example, this P1, and this is, suppose, for example, we'll take this example in the next minutes. P1 holding the resource, this R1, this resource is suppose R1, holding the resource and requesting for another process, while the P2 holds the resource of R2. क्या हुआ यहाँ पे? P1 क्या कर रहा है? P1 को ऑलरेडी R1 असाइन हो चुका है, ये असाइनमेंट एरो है, असाइन हो चुका है P1 को R1 रिसोर्स, और डिमांड कर रहा है R2 को, जबकि R2 P2 को असाइन हो चुका है और P2 R1 को डिमांड कर रहा है. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक सर्कल तैयार हो रहा है, एक साइकिल तैयार हो रही है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक. दिस इज अ सिचुएशन called as deadlock. So another definition we'll see of deadlock. If two or more processes waiting on happenings of some event, happening of some event means execution, IO operation, whatever, which never happens is called deadlock. If two or more processes waiting on happening of some event, कुछ इवेंट्स हैपन होने का इंस्टेंस कहेंगे हम, उस इवेंट को ही हम क्या कह सकते हैं? इंस्टेंस. इंस्टेंस. अब नेक्स्ट टाइम हम इंस्टेंस वर्ड यूज करेंगे, उसको ही हम इवेंट कह सकते हैं, मतलब कुछ एग्जीक्यूशन टाइप. ठीक है, तो यहां पर ये नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? हम उसे कहेंगे डेडलॉक. टू और मोर प्रोसेसेस वेटिंग ऑन अ happening of some event which never happens is called as deadlock. Or या फिर it is a situation when two processes sharing same resources. यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, when two processes, और यहाँ पर एक रिसोर्स है, ये दोनों रिसोर्सेस
शेयर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं शेयर, तब resources are effectively preventing each other from accessing the resource. तो ये रिसोर्स को ये दोनों एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को भी प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये मैं लूंगा, ये कहता है मैं लूंगा, तब यहाँ पर ये सिचुएशन ऑकर होगी, दैट इज कॉल्ड एज डेडलॉक। तो दो तीन डेफिनेशन हमने यहाँ पे अभी देखी डेडलॉक की। Set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process. या तो if two or more processes waiting on happening of some event which actually which never happens is called deadlock. It is a situation where two processes sharing the same resources are effectively preventing each other from accessing the resource. So ये एक situation है ऐसी कि यहाँ पर अपना प्रोग्रेस ये स्टॉप हो जाता है। सो द डेडलॉक इज अ सिचुएशन व्हेन a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other processes. So this situation is called as deadlock. डेडलॉक ये जो सिचुएशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमेशा आती है, उसको भी अवॉइड करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, तो बाद में हम कर सकते हैं इसको। सो दिस ऑकर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट। प्रोसेस कब जाएगा, ये वेटिंग स्टेट में जाएगा, बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज होल्डिंग द डिमांडेड रिसोर्स। एक रिसोर्स ऑलरेडी किसी ने होल्ड करके रखा है और उसका डिमांड दूसरा प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ पर ये वेट स्टेट में चला जाएगा। सो दिस डेडलॉक इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेवरल प्रोसेसेस शेयर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्स। अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्स क्या है ये हम बाद में देखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज आल्सो सॉफ्ट लॉक और दैट इज सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस अगर एक से ज्यादा रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं और दूसरा प्रोसेस उसको रिलीज नहीं करता वॉलंटरी, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है। एक यहाँ पे एक रोड है और ये भी रोड है यहाँ पे। बीच में क्या है, एक हम कहेंगे एक ब्रिज है जो कि नैरो ब्रिज है, ठीक है। अब ये नैरो ब्रिज ऐसा है कि यहाँ से एक ही कार जा सकती है, इस साइड से या तो इस साइड से, यहाँ से यहाँ पर या फिर यहाँ से यहाँ, एक ही कार जाएगी। यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर तो डबल लेन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल लेन है। और सिंगल लेन में क्या होगा कि एक ही कार एक बार एक समय पे जा सकती है, आ सकती है। अब इस सिचुएशन में अगर येलो कार ये एंटर हो चुकी है, येलो कार अगर एंटर हो चुकी है और सामने से एक पिंक कार फिर आ गई, ये रेड कार भी आ गई यहाँ पे, अब होगा क्या यहाँ पे कि येलो कार जो भी है इसका ड्राइवर वो कहता है कि मुझे जाना है इस साइड में, और ये रेड कार वाला भी क्या कहता है कि मुझे यहाँ पे जाना है। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर ये वेटिंग स्टेट में चले गए दोनों की। यह रिसोर्स, जो ये रिसोर्स है, मतलब ब्रिज इज द रिसोर्स नाउ एंड दिस इज प्रोसेस। येलो कार एंड रेड कार इज अ प्रोसेस, दीज आर द प्रोसेसेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो प्रोसेसेस है ये दोनों वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे और यहाँ पर इसका प्रोग्रेस हो नहीं पाएगा। सो देयर इज नो प्रोग्रेस। सो प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो अगर ये प्रोसेस यहाँ पे अगर आगे कार बढ़ जाती है, दैट मीन्स दैट देयर इज अ प्रोग्रेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे दोनों वेट स्टेट में है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन जनरल लाइफ कि दोनों यहाँ पर अड़े हैं कि पहले हम जाएंगे, ये कहता है मैं पहले जाऊंगा, और दोनों जा नहीं सकते।
तो ये सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ये डेडलॉक है। तो ये डेडलॉक हम ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ये हमने अभी कहा था कि एक प्रोसेस है और एक दूसरा प्रोसेस है। ऑलवेज रिमेंबर प्रोसेस इज इंडिकेटेड विथ सर्कल ओनली, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने प्रोसेस सर्कल से ही इंडिकेट करेंगे। और जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कौन सा हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, हार्डवेयर रिसोर्स है, जैसा प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, और भी कोई जो रिसोर्सेस है। सो ऑल दीज रिसोर्सेस कैन बी इंडिकेटेड विद द रेक्टेंगल। ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ कि प्रोसेस हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे और रिसोर्स ये रेक्टेंगल से या फिर स्क्वायर से हम इसको इंडिकेट करेंगे। और ये जो एजेस दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द असाइनमेंट एजेस। असाइनमेंट एजेस मीन्स ये असाइन होता है, ये रिसोर्स ऑलरेडी असाइन है प्रोसेस 1 को, और ये प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे रिसोर्स 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेडलॉक बन सकता है। सो इन दिस डायग्राम द प्रोसेस 1 हैज रिसोर्स 1, प्रोसेस 1 already have resource 1 and it needs resource 2 and it needs this resource 2। यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे ये रिसोर्स 1 इसको असाइन हो चुका है प्रोसेस 1 को, लेकिन प्रोसेस 1 को चाहिए रिसोर्स 2 भी असाइन हो जाए। अब ये रिसोर्स 2 भी असाइन हो जाए, कब होगा असाइन ये, जब कब होगा ये, जब प्रोसेस 2 इस रिसोर्स 2 को रिलीज कर देगा, इसको छोड़ देगा, इसको वॉलंटरीली ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली प्रोसेस 2 हैज रिसोर्स 2, दिस प्रोसेस 2 हैज रिसोर्स 2। अब यहां पर प्रोसेस 2 भी क्या कर रहा है, इट नीड्स टू एक्वायर रिसोर्स 1, रिसोर्स 1 ये डिमांड कर रहा है, इसकी रिसोर्स 1 की डिमांड कर रहा है, लेकिन रिसोर्स 1 ऑलरेडी असाइन टू प्रोसेस 1। सो प्रोसेस 1 एंड दिस प्रोसेस 2 आर इन डेडलॉक, बिकॉज यहां पर क्या बन गए, अभी एक सर्कल बन गया, यहाँ पर एक सर्कल बन गया, या फिर हम कहेंगे साइकिल बनी है। यहाँ पर एक साइकिल बनी है, जैसे देखो यहाँ रिसोर्स 1 ये असाइनमेंट प्रोसेस 1 को है और ये डिमांड कर रहा है रिसोर्स 2 को, रिसोर्स 2 ऑलरेडी प्रोसेस 2 के साथ में असाइन है और प्रोसेस 2 ये रिसोर्स 1 को डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन आती है, इन दिस सिचुएशन किसी एक ने वॉलंटरीली जब तक कि रिलीज नहीं करते प्रोसेस 1 या प्रोसेस 2 किसी रिसोर्स को, तभी जाके ये डेडलॉक अवॉइड हो सकता है, या फिर यहाँ पर डेडलॉक निकल सकता है। सो ओके, सो नाइदर दिस प्रोसेस 1 नॉर प्रोसेस 2 प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये जो सिचुएशन है इसका कंडीशंस क्या है, मतलब डेडलॉक कब ऑकर होगा, उसके नेसेसरी कंडीशंस क्या है। डेडलॉक 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, नेसेसरी कंडीशंस 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। 4 अलग अलग कंडीशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है टू ऑकर द डेडलॉक, डेडलॉक ऑकर होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हमने कहा था इसके पहले कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे अगर होगा तो ही, मतलब अवॉइड होगा तो ही ये डेडलॉक अवॉइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रिंटर है, 2 प्रिंटर है और 1-2 यूजर्स है, एक यूजर ने उस प्रिंटर को यूज कर लिया, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, तो दूसरा यूजर उसको प्रिंटर को यूज करेगा और ये पहला वाला यूजर दूसरे प्रिंटर को यूज करेगा। तो ये म्यूचुअली प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहे हैं, म्यूचुअली ये इसको यूज कर रहे हैं,
एक्सक्लूजन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो एटलीस्ट वन रिसोर्स, कोई भी प्रिंटर सपोज, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड. अगर उसको नॉन शेयरेबल मोड में हमने रख दिया प्रिंटर को, सो हम कहेंगे यहां पे एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी इन नॉन शेयरेबल मोड. एटलीस्ट वन रिसोर्स जो होगा ये नॉन शेयरेबल मोड में होगा. जब नॉन शेयरेबल मोड में है, यहाँ पे एक प्रोसेस है और एक रिसोर्स है और ये नॉन शेयरेबल है. नॉन शेयरेबल मतलब ये रिसोर्स किसी और को शेयर हो ही नहीं सकेगा. हम उसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. यहाँ पे म्यूचुअली ये रिसोर्स किसी और प्रोसेस को दे ही नहीं सकेंगे. हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे. तो ये सिचुएशन अगर आती है यहाँ पे, ये कंडीशन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली डेडलॉक occurs. Okay, so only one process at a time can use that resource. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. ये resource must be released. जब तक ये रिलीज नहीं होता है, प्रोसेस रिलीज नहीं करता, तब तक ये डेडलॉक में रहेगा. किसी और दूसरा प्रोसेस को नहीं ले सकेगा और नॉन शेयरेबल मोड में इसको रखा जाएगा. हम उसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग अमंग द वेरियस प्रोसेसेस. सो देयर शुड बी a resource that can only be held by one process at a time. वन प्रोसेस एट ए टाइम. मतलब यहां पर हाँ ठीक है, अगर इसने प्रोसेस ने इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, या फिर इसने इस रिसोर्स को रिलीज कर दिया, अगर ये रिलीज करता है वॉलंटरीली, देन अनदर प्रोसेस कैन यूज दिस रिसोर्स अंटिल दैट प्रोसेस मस्ट बी इन अ डेडलॉक. ठीक है, तो ये कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नेक्स्ट कौन सा है? होल्ड एंड वेट. अगर होल्ड एंड वेट कंडीशन आती है तो डेडलॉक वहां पे आएगा. दैट इज नेसेसरी कंडीशन टू ऑकर द डेडलॉक. डेडलॉक ऑकर होने के लिए ये कंडीशन अगर आती है इन वन ऑफ दिस 4 कंडीशंस, तो एक कंडीशन है होल्ड एंड वेट, तो ये अगर आती है तो वहां पे डेफिनेटली डेडलॉक आएगा. सो देयर मस्ट process that is holding at least one resource and is waiting to acquire additional resources that are currently being held by other processes like this one. Resource 1 is already allocated to process 1. अभी यहाँ पे फिर से मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि ये जो असाइनमेंट है, एरो देखिए आप, इसका एरो प्रोसेस की तरफ है, इसका मतलब ये असाइंड हो चुका है. इट इज अलोकेटेड. हम क्या कहते हैं इसको? ये प्रोसेस रिसोर्स ये अलोकेटेड है यहाँ पे. और ये जो यहाँ पे रिसोर्स प्रोसेस 2 है, और ये प्रोसेस 2 ये क्या कर रहा है? इसे रिसोर्स 1 को रिक्वेस्ट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज डिमांड. इट डिमांडेड रिसोर्स 1. but resource 1 is already allocated to process 1. It is assigned to process 1. Process 1 को already assigned है resource 1. and यहां पर ये सिचुएशन अगर आती है तो that is called as hold and wait. hold and wait में क्या है कि एक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करेगा और वेटिंग टू अक्वायर एडिशनल रिसोर्स. जैसा यहाँ पे प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3 को ऑलरेडी होल्ड करके रखा है. सो दिस 2 resources are holding by this process 2 and still demand resource 1. रिसोर्स 1 को फिर डिमांड कर रहा है वो
जबकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी अलोकेट कर चुका, ये रिसोर्सेस ऑलरेडी होल्ड कर चुका है, असाइन हो चुका है, अलोकेट हो चुका है प्रोसेस 2 को, एंड स्टिल डिमांड टू द अनदर रिसोर्स एंड विच इज ऑलरेडी असाइन टू प्रोसेस 1। ये कब इसको मिलेगा, कब इसको मिलेगा, जब ये रिसोर्स 2 रिलीज हो जाएगा या तो रिसोर्स 3 रिलीज हो जाएगा। कौन रिलीज करेगा, प्रोसेस 2 रिलीज करेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोसेस 1 मस्ट रिलीज दिस रिसोर्स, रिसोर्स R1। अगर ये आता है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं होल्ड, होल्ड एंड वेट, वेट फॉर दिस वन। इसको रिलीज भी नहीं करना और इसके लिए वेट भी करना, सो दैट इज होल्ड एंड वेट। सो हियर एक्चुअली प्रोसेस 2 होल्ड्स resource 2 and resource 3, both processes, both resources, and is requesting for resource 1, and which is actually held by process 1. This situation is called as hold and wait. Next condition, necessary condition क्या है, no preemption। हमें पता है preemption क्या होता है कि wait by storing its previous state, by storing its previous state it will context to another process, another situation, that is called as preemption। लेकिन यहाँ पे preemption नहीं होना चाहिए। जब तक ये रिसोर्स उसको अलोकेट किया गया है तब तक ये पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ताकि बाकी प्रोसेसेस वेट स्टेट में चले जाए। रिसोर्स कैनॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेस बाय फोर्स। ये जैसा यहाँ पे सिचुएशन है, प्रोसेस P1 होल्डिंग रिसोर्स 1, प्रोसेस P2 होल्डिंग रिसोर्स 2, ठीक है। अब ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा और ये भी इसको रिलीज नहीं करेगा, तो ये इसको हम कहते हैं नो प्रीएम्प्शन। ये प्रीएम्प्ट नहीं होगा, प्रोसेस प्रीएम्प्ट नहीं होगा, मतलब इसको छोड़कर और किसी प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना है और अलोकेट भी कर लेना, तो ये यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नो प्रीएम्प्शन। हमें पता है ये नो प्रीएम्प्शन। प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरीली, वॉलंटरीली इसको ये रिलीज करना चाहिए, इन बिटवीन ये रिलीज नहीं होना चाहिए। प्रोसेस 2 कैनॉट प्रीएम्प्ट द रिसोर्स 1। प्रोसेस P2 ये रिसोर्स 1 को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 को प्रोसेस 2 प्रीएम्प्ट नहीं करा सकता। इट विल ओनली बी रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस 1 relinquish it voluntarily after its execution is complete. So that is no preemption. तो ये no preemption एक necessary condition है to occur the deadlock। फिर है सर्कुलर वेट, तो हमें तो पता ही, हमने पहले ही देखा ये सर्कुलर वेट जब आएगा definitely it is a deadlock। So here process is waiting for resource held by second process and which is waiting for the resource held by the third process and so on। फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस होल्ड कर रहा है फर्स्ट रिसोर्स को और नेक्स्ट रिसोर्स को डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये सर्कुलर कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सिचुएशन, ये क्या है, सर्कुलर वेट। सो टिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। सो दिस इज अ सर्कुलर चेन। ये क्या है, एक सर्कुलर चेन है। हियर प्रोसेस 1 इज अलोकेटेड रिसोर्स 2। यस, प्रोसेस 1 इज अलोकेटेड रिसोर्स 2। ये रिसोर्स 2 यहां पे इसको अलोकेट हो चुका है प्रोसेस 1 को एंड इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स 1 एंड इज रिक्वेस्टिंग दिस रिसोर्स 1। ये ऑलरेडी अलोकेट है प्रोसेस 1 को और प्रोसेस 1 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को।
Similarly, process 2 is allocated resource 1, ये resource 1 इसको allocate है, लेकिन process 2 क्या कर रहा है, resource 2 को request कर रहा है and is requesting resource 2. So this form a circular wet loop. ये यहाँ पे एक सर्कुलर वेट लूप यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये रिलीज भी हो जाएगा तो ये पकड़ लेगा, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये अगर ऐसा है then it is called as circular wait. So these are the 4 different situations, necessary conditions for occurring the deadlock: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. ये 4 अलग अलग सिचुएशंस है यहाँ पे। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, अब ये रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में हम सेट ऑफ, एक ग्राफ में क्या होता है, सेट ऑफ वर्टाइसेस होते हैं और सेट ऑफ एजेस होते हैं। यहाँ पे एक आधे ग्राफ में अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस and set of edges, set of vertices and set of edges, ये V से इंडिकेट करेंगे हम और इसको हम E से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। So the set of vertices P is partitioned into different types of nodes. कौन से ग्राफ में कौन से नोड्स हो सकते हैं, 2 ही नोड हो सकते हैं। यहाँ पर एक P होगा और एक दूसरा ये होगा R। ये P क्या है, प्रोसेसेस है, R क्या है, ये रिसोर्सेस है। सो हियर वी कैन से इन दिस प्रोसेसेस सेट ऑफ वर्टाइसेस P1, P2, Pn, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एंड रिसोर्सेस में R1, R2 लाइक दिस R1। तो ये 2 अलग अलग यहाँ पे टाइप्स ऑफ नोड्स हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ नोड्स इन द ग्राफ। हम यहाँ पे जो ग्राफ थ्योरी देखेंगे या फिर ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर 2 टाइप के नोड्स हम देखेंगे, प्रोसेस और रिसोर्स। प्रोसेस सर्कल से हम इंडिकेट करते हैं और रिसोर्स हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और एजेस है यहाँ पे, एजेस ये डायरेक्टेड एज है और ये डायरेक्शंस डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या है। इंस्टेंस यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे, इंस्टेंस ये जो है, ये मैंने डॉट जो निकाला हम इसको कहते हैं इंस्टेंस या फिर इवेंट। तो इंस्टेंस यहाँ पर एक इंस्टेंस है, अगर यहाँ पर ये रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट हो चुका है तो हम ये यहाँ से एरो निकाल असाइनमेंट देते हैं। ये एज, ये क्या है, असाइनमेंट एज। और अगर ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, इसको प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है तो एरो ऐसा आएगा। ये ध्यान रखना है आपने, एरो कहां से आ रहा है, यहाँ पे इंस्टेंस से, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टेंस जो है रिसोर्स का इंस्टेंस, रिसोर्स किस लिए यूज हो रहा है, प्रिंटर किस लिए यूज हो रहा है, प्रिंटिंग इज द रिसोर्स। हार्ड डिस्क किस लिए यूज हो रहा है, फॉर स्टोरिंग इज द इंस्टेंस। सो 1 इंस्टेंस, 2 इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मे बी इन अ रिसोर्स। तो यहाँ पर ये 1 इंस्टेंस इज अलोकेटेड टू प्रोसेस P1 और P, और P प्रोसेस जो है इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ये इंस्टेंस को नहीं करता, ये करता है रिसोर्स को। तो ये बाहर, ये बॉक्स के बाहर इसको हम एरो लगाएंगे, और ये बॉक्स के बाहर से जो डॉट हमने निकाला यहाँ पे, ये इंस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस को ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो ये छोटी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। So directed age from process, any process to any resource is denoted like P1, suppose यहाँ पे PI करेंगे हम, PI to R, यहाँ पे हम J लिखेंगे। तो यहाँ पे PI और PJ मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे होगा। तो ये जो असाइनमेंट एज है, ये
P1 to R1. सो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? PI requested an instance of resource type RJ. So PI request an instance of ये रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप क्या? RJ. अब यहाँ पे रिसोर्स टाइप कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे RJ लिखा, एंड इज करंटली वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. सो डायरेक्टेड एज फ्रॉम रिसोर्स टाइप RJ टू PI. ये क्या इंडिकेट करता है? अभी ये क्या करता है इंडिकेट? इट डिनोट्स or can say it signifies that an instance of resource type RJ has been allocated. ये क्या है? Allocated. ये क्या है यहाँ पे? Allocated. और ये क्या है यहाँ पे? Request. इतना ध्यान रखना है आपने. रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हम नेक्स्ट टाइम जब लेंगे तब इतना ध्यान रखना है आपने कि P टू R इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है, और R टू P इसका मतलब ये रिसोर्स P1 को या फिर प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायरेक्टेड एज PI टू RJ इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एज. ये क्या है यहाँ पे? मैं इसको भी मिटा देता हूं. PI टू RJ क्या है? ये है रिक्वेस्ट एज. दिस वन इज रिक्वेस्ट एज. और दिस ये क्या है फिर? ये है असाइनमेंट एज. अलोकेटेड असाइनमेंट एज. ये इतना ध्यान रखना है आपने. अगर ये आपको याद ये अगर कभी दिमाग में पक्का हो गया कि ये PI टू RJ is a request age, RJ to PI is the assignment age, then resource allocation graph will be very easy to understand. Okay, so let us see this one. So here let us see the example of this resource allocation graph. This is an example of resource allocation graph where the process P1 requesting to R1, which actually hold the R2, one instance of R2. So directed age P1 to RJ, P1 to R1. So that is called as request age, and R1 to P2 is called as assignment age. Okay. अब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप RJ, रिक्वेस्ट इज इंसर्टेड इन द अलोकेशन ग्राफ, जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं ऐसे अलग अलग एजेस. नाउ यू कैन सी द डिफरेंट एजेस. When this request can fulfill, the request age is instance transferred to the assignment age. तो ये assignment age में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर हम देखें तो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ अगर हम सिचुएशन अगर देखें यहाँ पे, तो सेट ऑफ प्रोसेस, सेट ऑफ रिसोर्स एंड सेट ऑफ एजेस क्या क्या रहेंगे. तो यहाँ पे हम कहेंगे सेट ऑफ प्रोसेस, रिसोर्स एंड एजेस. ठीक है. तो ये फिलहाल इसको मैं करना यहाँ पे PI रिसोर्स सेट ऑफ प्रोसेसेस कौन से हैं? P1, P2 एंड P3. सेट ऑफ रिसोर्सेस क्या क्या है यहाँ पे?
R1, R2, R3, R4, ठीक है। और सेट ऑफ एजेस, तो मैं थोड़ा सा अंदर से लेता हूं उसको, सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ एजेस R1 to P1 to R1, P1 to R1, then P2 to R3, then R1 to P2, क्योंकि P3 किसी को रिक्वेस्ट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली R1 से P2 लेते हैं और R2 से P2। अभी कोई बचा है, P3 बचा है यहाँ पे, R3 to P3। So this is set of ages, this is set of resource, this is set of process। यहाँ पे इंस्टेंसेस क्या है, रिसोर्स इंस्टेंसेस क्या क्या है? रिसोर्स इंस्टेंसेस अगर हम देखें, रिसोर्स इंस्टेंसेस, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, ये वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, then one instance of resource type R2, two instance of resource type, sorry ये R3 है, ये R2, and three instance of resource type R3। तो ये instances यहाँ पे जो डॉट में दिया है, that is nothing but a instances। प्रोसेस स्टेट क्या है यहाँ पे? Process P1 is holding an instance of resource type R2 and is waiting for instance of resource type R1। P1 ने क्या होल्ड करके रखा है यहाँ पे? R2 का एक इंस्टेंस एंड वेटिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ R1, रिसोर्स टाइप, इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1। दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस P2 is holding an instance of R1 and waiting R1 and R2 and waiting for, requesting for R3, instance of R3। P3 के बारे में क्या है यहाँ पे? बस देखिए, P3 is holding an instance of R3। So this is the state। If you see that resources has exactly one instance, then circle implies that a deadlock has occurred। यहाँ पर deadlock occur होता है क्या? अभी deadlock occur नहीं होता है। P1 to R1, R1 to P2 और P2 to R2 नहीं है। अगर होता तब भी deadlock का इतना severe केस नहीं रहता, क्योंकि दो instances है। If more than one instance there, then there is less possibility of occurring the deadlock। deadlock occur भी होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, ठीक है। If circle involves only a set of resource type, each of which has only a single instance, then deadlock definitely occurs। अगर एक इंस्टेंस है और एक रिसोर्स, दो रिसोर्स वहां पे, दो रिक्वेस्ट वहां पे आती हैं, तो डेडलॉक ऑकर होता है। दो इंस्टेंसेस है और तीन वहां पे आते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट या फिर हम कहेंगे यहाँ पर डिमांड होती है, तब भी डेडलॉक ऑकर होता है। So each process involved in the cycle is called as cycle is deadlock। यहाँ पर डेडलॉक नहीं है, लेकिन डेडलॉक अगर हम देखते हैं डेडलॉक सिचुएशन कब आएगी, तो ये है प्रोसेस P3 demanding resource R2, that means only two resource instances are there and two resource instances already allocated to P1 and P2, and still P3 demanding the third instance of R2 which is not available। So यहाँ पर दो अलग अलग साइकिल बनती है, यहाँ पर दो साइकिल बनती है कि यहाँ पर एक्चुअली रिसोर्स इंस्टेंस तो करंटली अवेलेबल नहीं है,
लेकिन फिर भी डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे 2 साइकिल आती है। तो पहली साइकिल जो है दिस वन, कैसे P1 टू R1, P1 टू R1, R1 टू P2, R1 टू P2, P2 टू R3, R3 टू P3, P3 टू, सॉरी मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे P1 टू R1, R1 टू P2, P2 टू R3, R3 टू P3, P3 टू R2, R2 टू P1। ये साइकिल बन गई यहाँ पे एक फर्स्ट साइकिल। सेकंड साइकिल ये है यहाँ पे P2, P2 टू R3, R3 टू P3, P3 टू R2, R2 टू P2। ये भी एक साइकिल बन गई यहाँ पे, तो ये दूसरी साइकिल है यहाँ पे। सो इन दिस सिचुएशन डेडलॉक occurs. So process P1, P2 and P3 are deadlock. So process P2 is waiting for resource R3, which is held by process P3. Process P3 is waiting for either process P1 or P2. Sorry, this process P3 is waiting for either process P1 or process P2 to release resource R2. और बीच में क्या आ गया फिर यहाँ पे प्रोसेस P1 भी वेट कर रहा है। तो प्रोसेस P1 इज वेटिंग फॉर प्रोसेस P2 टू रिलीज रिसोर्स R1 and this goes in wait state. So here deadlock occurs. So here we complete this first topic of this deadlock. Second topic is method of handling deadlock. We'll see this method of handling the deadlock in next session.